तो सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन बड़ाई, जो तुम दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई, तेरे गुण गावा दे बजाई, जैसे सच में रहो समाई, बिसर नानी दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चौए हो हम मैले गम मैले उजल कर दे, हम मैले गम मैले उजल कर दे कर दे,
उजल करते हम निर्गुण तो बार हम मूर्ख तू चतर सर माधवन ऐसे तो है हम पापी तुम पाप उन्हीं को ठाकर तुम सब साजे साजन जियो भेंड देता निर्गुण यारे गुण नहीं तुम दान दियो तुम करो फल हम फल सदा सदा दया तुम शरणाई पर राखो अपने तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब कहो नानक हमें है रख संतन कै कर देवो उजल कर देवो उजल कर देवो उजल कर देवो हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता पार ब्रह्म परमेश्वर ਨੂੰ ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਵ फिर अपने गुरुदेव गुरु रामदास जी तक जिन्हों ने चार मंगल सुखमनी साहिब विच आदि गुरु नानक साहिब जी गुरु अंगद देव गुरु अमरदास रामदास सोडी सुल्तान पातशाह तक चारे स्वरूपों के मंगल किए हैं और आप जिस प्यार विच गुरु साहिब जी उपमा करते हैं हम मैले मैल का अर्थ जन्मा जन्मा की जीव के वास्ते जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याह आप इस धरती विच अज बड़े लंबे देर समय तो बाद जिथे बड़िया लंबिया रौनक सवा सवा महीने ने वन में चलीसे ते भंडारे और संगत चारों तरफ चारों ओर से इतना प्यार विच ये रोही उद्यान जंगल रूप तो कहिए होना है बिरछा का रूप हो जाना रोही ते उद्यान जिथे कोई वसदा नहीं और सिर्फ बियावान का रूप होवे उत्थे जंगलों विच मंगल प्राचीन साडे गुर इतिहास के नाल नाल क्योंकि गुर इतिहास का छेवें पातशाही दे नाल संबंधित बजुर्ग गिल झलियाणे की सिद्धसर की धरती दे नाल बजुर्गों का राज भाग भी ते मेरी पीरी दे मालक का इन्हां परम परम का अर्थ है पवित्र परम का अर्थ है बड़े परम दे सच दे स्वरूप गुरु हरगोबिंद साहब ने बाबा जी नाल जिन्होंने सिंहा सिंह सिद्ध पुरुष करके लंबिया उम्र जिन्हों दियां 250-300 साल की अवस्था विच और इदियां सिद्धियां सिद्ध पुरुषों विच उस वेले नाथां दा बहुत जोड़ सी सिद्ध लोग या दो धर्म ज़्यादा उस वेले
ਸੰਨਿਆਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਫਿਰੋਗੜ ਨਾਥ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਬਾਲਕਨਾਥ ਆਦਿਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਟੱਲੇ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਫਾੜ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਮੁੰਨਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਗੀ ਬੁਰੀ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਫੜਦੇ, ਕੰਨ ਫਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਡਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਲੱਖਣ ਨਾਥ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਗੁੱਗਾ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਸਿੱਧਸਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ। ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਨਾਥ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼। ਗੁੱਗਾ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਤਨ ਹਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਗੁੱਗੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੁਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੀ ਧਰਤੀ ਉਦਿਆਨ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਪਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਡੇਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਨੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਥਾਈ, ਊਨ ਨਾ ਕਤਹੁ ਬਾਤਰ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ। ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਇਉਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਗਧ ਪੂਜਾ ਨਿਸਧਾਮ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ, ਦੇਹਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਘੂਰ ਕੇ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਕੌੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੋਹ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਜਾ ਨਿਜ ਨਗਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਲੋੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਹੈ ਸੁਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ। ਤੀਸਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਨਸਰਕੁਲ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਆਇਆ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਦੋਏ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਵ ਅਨੁਸਾਰ। ਚੌਥਾ ਆਇਆ ਬੋਝਤ ਗੁਣੀ ਸੁਮਗਰ। ਗੁਣਵਾਨ ਪੁਰਸ਼, ਗੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਗੁਣਵਾਨ ਪੁਰਸ਼, ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
तो जिथे आओ बैठ आदर सब थाई शुभ थाई अच्छी जगह ते फिर आम स्थाना ते नहीं जी आया सत्कार मिलदा ऊन न कत हूं बदता। इयों गुणवान पुरुष बनना ते टोलने भी ये गुणा का खजाना किहदे कोल है। टोलते मेरे तो कुदरती इन्हां सिद्धां पुरखां दियां वडियाइयां विच अपनी धरती विच सिद्धां पुरुषां दा सिद्धसर दी धरती जिथे नौई नाथ 84 सिद्ध लोग इस स्थान ते वसदे सन। मीरी पीरी दे मालक दे आउण दे समय पीली भीत विच भी गोरख मता नानक मता जिक मता नाम धर्म दा है, मत है, मजहब है, धर्म है। पहले गोरख दा मत उत्थे चलदा सी धर्म। जिस वक्त गुरु नानक साहब गए तो उतों दी प्रभाव असर होया गुरु नानक साहब दा। अजकल नानक मता कहे। तीसरा अचल बटाला सी। इस धरती विच भी सिद्धां दे स्थानां ते चौथा है जिथे सिद्ध गोष्ठ होई सुमेर पर्वत है। सिद्धां नाल ही जपजी साहब दा गुरु नानक साहब जी ने मिल के उचारण कीता। चार स्थान सिद्ध गोष्ठ दे सिद्धां नाल चर्चा करन दे मशहूर सिद्ध लोग जिथे वसदे रहंदे सी। जे वो नहीं बाबा नानक साहब दे पास आए तो गुरु नानक साहब आप उथे आप खुद पहुंच के उन्हां नाल विचार वटांदरा गोष्ठ करनी। गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे। कौन कौन उधरे ऐसा गुरु नानक दा प्रताप है। जिन जिन दर्शन पाया जी गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे। जिन जिन दर्शन पाया गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे। जिन जिन दर्शन पाया गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे। जिन जिन दर्शन पाया गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे। जिन जिन दर्शन पाया गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे। नाम सुन उधरे। जिन जिन दर्शन जिन जिन दर्शन पाया तेरा जिन जिन दर्शन पाया सतगुर। जिन जिन दर्शन पाया जिन जिन दर्शन पाया है। दर्शन पाया जिन जिन दर्शन पाया तेरा। जिन जिन दर्शन पाया जिन जिन दर्शन पाया तेरा।
जिन जिन दर्शन पाया जी गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे। जिन जिन दर्शन पाया तेरा गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे। गोष्ठ ज्ञान नाम सुन गोष्ठ चर्चा करनी सिद्ध गोष्ठ आउंदी है। सवाल ते जवाब सिद्धा वालों उसे प्रश्न दे उत्तर गुरु साहब उस सवाल नूं बाणी विच रंगदे गए हैं। सवाल सिद्धा वालों दुनियावी तौर ते वचनां विच हुंदा सी, ये नहीं कि अद्धा सिद्धा दी बाणी दा शब्द है। सिद्ध आम आपां जिस तरह बोलते हैं गल्लां करदे हां व्याख्या करदे हां ਉਹੀ गुरु नानक साहब दरगाह वालों उसनूं बाणी द्वारा रंगण विच लिआउंदे सी। उसका सवाल का जवाब जिवें असीं कहने आ प्रश्न बड़े प्यार नाल दी नाल कवन गुरु जिसका तू चेला, ऐसे सवाल कित्थों आए हैं, क्यों रही है, किम बाल इत्थे बाला ही कह दिता, छोटी अवस्था करके गुरु नानक साहब दे नाल चर्चा करने वाले और नाल स्रोते भी बैठे थे। ज्ञान प्रकाश हो जाना उत्थे। ज्ञान का एक स्वरूप किसी औखे शब्द दे अर्थ कर दिओ उदों विचार ते ज्ञान हो जाती है। इउं समझो जिस तरह एक तीर्थ विच इशनान करन दा पता आपां नूं तां है नहीं कि पुण्य दा मिल गया जां नहीं मिलिया। बहुत सौखा समझ विच आम मेरे वर्गे कमलियां दे भी आ जाओ। जदों अर्थ हो जाए उदों ज्ञान ते विचार समझो उहदा पुन फल प्राप्त हो जाता है। उदों ही बिल्कुल भी सच है गल, उदों अपने आप ही मन के आप ही मोहर ला दिंदा है कि वाह वाह ये कुछ लुकिया सी। हुण जिन्हों एक ओंकार दे अर्थ नहीं आउंदे पढ़ी जरूर जांदा, पढ़िया ना ही भेद उहदे विच की लुकिया। एक ओंकार किसनूं कहंदे हन, सतनाम किसनूं कहंदे हन, करता किसनूं कहंदे हन, पुरख जितना चिर कोई पढ़ी लख जाओ पढ़िया ना ही भेद कोई पता नहीं लगता। बुझिया पावना पाऊगा कदों जदों बुझू, बुझाऊ कौन सुनो जिसनों ज्ञान है, जिसनों अर्थ बोध विचार है। ज्ञानवान पुरुष तो उन्होंने महापुरुष ज्ञानवान गुरु लोकां तक का दर्जा दिता जाता है। ज्ञान गोष्ठ हो गई, उत्तर मिलिया, सुन लिया उन्होंने और सुनिया भी नाम है उठ ना आम वो नाम सत है। आम नाम नहीं सुनिया लोकां दे नाम लिया मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति गुरु दे बख्शे हुए नाम विच ही लुकी पई है। मुक्ति भुक्ति जुगति सो नाम जिन्हां ने सुनिया प्रकाश हो गया, उन्होंने एक अर्थ बोध हो गया। सिद्ध पुछण सुन वालिया कबन शगत तुम इत्थे लियाई। ऐ सुमेर पर्वत ते ऐसे सवाल पांडव आए सी जरूर भगवान कृष्ण चंद्र दे भेजे हुए द्वापर दे एंड वेले अंत आ गया, अगे कलयुग शुरू होना सी। चारे पांडव ते पार्वत उस वेले द्रौपदा पंजे बर्फ विच गल गए। एक बचिया सी धर्म उदिष्टर ते एक कुत्ता दरवेश। तू इत्थे तेरी उम्र छोटी है, दो तेरे चेले नाल हन, तेनू किवें लै आए। ऐ सुमेर पर्वत ते हिमालय पर्वत ते हिम बर्फ नूं कहा है, फिर हेम सोने नूं कहा है। दो अर्थ दे कीते, हिम चांदी नूं भी कह दिता, तीन अर्थ हो गए। और टोली जाओ भाई, हम हिम हुम
फिर भाषा विच व्याकरणी अर्थ हो ही जाणगे। इत्थे हिमाचल आचल जिन्हों हिला चला नहीं कोई चलता उसनों असीं हिमाचल कहते। हिमाचल वो पर्वत बर्फ का पर्वत है, नीचे सोना ही सोना पिया है, कोई कढ़ के दिखावे जरा। साडे पुराने कथावां ने सिद्ध पुछण जदों पुछा, हजूर ने कहा हो जप्यो परमेश्वर है पौ भगत संग ताड़ी लाई। हे सिद्धो मैं एको एक ओंकार सतनाम ऐ सिद्धो मैं तां आया तुहाडे तक। हुण जिहड़े सुणदे ने नौ नाथ 84 सिद्ध जप्या सिद्धो इको सतनाम वाहिगुरू। जप्या सिद्धो इको सतनाम वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरू जप्या सिद्धो। इको सतनाम वाहिगुरू जप्या सिद्धो मैं इको सतनाम वाहिगुरू। ओ जप्या सिद्धो जप्या सिद्धो जप्या सिद्धो मैं इको सतनाम वाहिगुरू। जप्या सिद्धो मैं इको सतनाम वाहिगुरू। जप्या सिद्धो मैं इको। हो जप्यो परमेश्वर भौ भगत संग ताड़ी लाई। मैं एक दा जाप जप्या पवित्र तो पवित्र आत्मा नाम जपण नाल ही ये उच्चियां सुचियां कमाइयां वालियां महान हस्तियां जिन्हां विच नाम दा ही प्रताप है। सुनिया जपजी साहिब सुनने वाले 4 पौड़ियां जपजी साहिब विच कि सुनन नाल ही की कुछ मिलता है। जिन्हां ने दर्शन कीते, दर्शन तो बाद गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे। सुने सिद्ध पीर सुर नाथ, सुने धरत धवल आकाश। इतना सिद्धि शक्ति सिद्ध लोगो तुसी भी अपने गुरु दे कोलों नाम सुनिया ना। फिर मनण विच 4 जपजी साहिब दीयां पौड़ियां आउंदियां हन। मनण विच फिर जिन्हां ने कमाई कीती है बारिया ना जावे एक बार जो तुद भावे साई भली खार। 4 दफा आउंदा है जपजी साहिब विच। सुनन विच भी 4 दफा, मनण विच भी 4 दफा। निध्यासन कमाई करन वालियां दा 5 प्रवान 5 प्रधान। पंचे पावे दरगह मान, पंचे सोहे दर राजान। पंचा का गुर एक ध्यान। ये शब्द की व्याख्या क्योंकि सुनन दा मनन दा कमाई करन वालियां वास्ते जे को कहे करे विचार बारिया ना जावे एक बार। मैं एक दफा नहीं अपना शरीर अपने गुरु ते वार दा भी आ सिर ले लो, ये शरीर में भेटा कर देता नहीं। जितनी दफा भी शरीर धारण करा मैं, जितने भी शरीर
मैनू बख्शोगे मैं सारी तुहातों कुर्बान कर देवां। जो तुद भावे साई भली कर, तू सदा सलामत निरंकार। उथे शब्द की टेक निध्यासन कमाउण वालियां नूं आपदे स्वरूप की पहचान हो गई। चौथी दफा आ जाने ये जिहड़े सज्जन विद्वान पुरुष भी बैठे ने जपजी साहिब विच ही अगे सिद्धा नूं फिर के सुन लिया, मन लिया। कमाई विच लियाओ कमाई करियो, कमाई वालियां दा पंच प्रवान पंच नाम पूर्ण संत दा है। वो प्रवान हो गए, दरगाह च कबूल हो गए, सफल हो गए, उन्हां दा आउणा सफल हो गया। चौथी दफा चारे चार पौड़ियां, मुंदा संतोख शर्म पद झोली, ध्यान की करे विभूत, किंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रती आई पंथी, सगल जमाती मन जीतै जगदीश जग जीत। अगे की आया आदेश। सिद्धा ने कहा वाह वाह, है नानक आदेश, सिद्धो आदेश। किस नूं आदेश? नमस्कार करनू कह, मत्था टेकण नूं कह। मन गए हुण तुहानू भी तुसी कोई पैगंबर औली अवतार है मात लोक विच आए हुए हो। आदेश तिसै आदेश, तिसै वो ब्रह्म नूं, तिसै आपदी आत्मा नूं। ये वेदांत अंग विच अर्थ हो गया है। आदेश तिसै आदेश, मेरी मुझको नमस्कार। बहुत दफा अपने दास के कोलों भी और कितने महापुरखों तो आपने सुनिया पढ़िया विचारिया होवेगा। इस मंजिल चौथी ते जदों दा स्वै स्वरूप हो गए, गुरु वशिष्ठ जी राम अवतार नूं, त्रेते दे अवतार जी नूं ये उपदेश दिंदे हन, हे राम बेशक आप जुग अवतार हो, पर मेरे तां सिख हो, शिष्य हो, चेले हो। मोक्ष पंथ दे, मुक्त मार्ग दे, ज्ञान मार्ग दे, धर्म मार्ग दे, ब्रह्म मार्ग दे, परमेश्वर मार्ग दे, राम मार्ग दे, संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी। पर यह गल मैं तुहानू एक शिष्य हुंदिया होया, चेला हुंदिया होया, बेशक अवतार ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा नूं टुटी नूं बन्नण वास्ते फिर आए हो। सतयुग तो बाद तेरे ते युग दे अवतार आए हो। मैं एक उपदेश दे रहा हाँ। की उपदेश है? चौथा है सुनना, मनना, कमाई करनी। कमाई करके कि असी इत्थे पहुंच गए। हे राम सामने बैठ, कहते महाराज ऐदों अगे किथे जाऊं, किथे जाऊं? मेरी मुझको नमस्कार। गुरु वशिष्ठ जी, गुरु साहिब का विशिष्ट गुरु में पाया। विशिष्ट तो मुराद है विशिष्ट। हे राम मैं एक गल तेन यह भी निश्चय कराना योग वशिष्ठ विच, तेनों गुरु वशिष्ठ वर्गा गुरु नहीं लभना जा दुनिया नूं टोलनी, टोलनी। पर गुरु वशिष्ठ नूं राम जी जैसा कोई सिख नहीं मिलना। गुरु नानक साहब ने इको ही सिख पालिया, बाबा लैणा। लैणिया मैं अपने पुत्रा नूं नहीं दिता। तारिया जहान लया अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुद नूं धन कहया, तिनी जम नेड़ न आया। छुड़ा लिया संसार, पर मैं दूजा नानक होर नहीं कोई बनाया, एक सिर्फ मैनू तू ही मिलिया। मेरी मुझको नमस्कार।
तख्त दे दिता। पोशाका इशनान पवा के बिठा के उत्ते तख्त दे। सौखा देखो कितना सौखे तो सौखा मैं बोलना। तख्त की वडियाई दे के 3 परिक्रमा करके किसनू आदेश किया? तिसे आदेश लैणिया अपना सीस तेरे मैं चरण ते टिका दिता। ये हुण तेरा चरण नहीं। सिख दुखी हुंदे ने, श्री चंद भगवान तो लेकर श्राप दे रहे ने। महाराज कहंदे तुहानू किसी नू नहीं पता ये गल दा। अंग परस के अंगद बनिया जो दीवे तो दीवा। 2 दीव्यां दी जोत एक हो गई। ना ये लैणे विच फर्क है ना मेरे विच, असी दोए स्वरूप एक हो गए। मेरी आप अर्थ भी समझ गई। मैं कोई ज्ञानी नहीं, अनपढ़ बंदा। तिसे आदेश सुनिया मन्या ते अमल कीता मन के। अगे किया और स्वै स्वरूप है राम दशमेश जियां तक लाओ तुसी। ते 5 प्यारे मैं सारा जगत चारे तरफ दी संगत नूं सदे पत्तर बुला बुला के आनंदपुरी विच सब नूं बुला लिया। एक मेरी तलवार खिंचना उंज पता लग जाता भी इम्तिहान है। सिर्फ 5 प्यारे नितरे ने। 5 आदेश तिसे आदेश। मेरी किसनू है आदेश? अज मेरे तुसी 5 प्यारे मेरी जिंद जान बन गए। हुण मैनू भी ये दात बख्श दो। क्या दोए स्वरूप खालसा मेरो रूप है। गुरु ते खालसा एक स्वरूप हो गए। अर्थ उथे ही ज्ञानवान पुरुष सज्जन संगतां सब नाल लाहे वाले ने। बहुत रसमई हिरदे आप बनाई बैठे हो। विस्माद स्वरूप विच ये आनंद वरत रहा है। ये मेरी मैं बिल्कुल एक कहना। अज में चले गए सी फिर जिमें कल भी कहे था कथा शाम को भी सिंघां दियां ड्यूटियां। मैं कहा पता है कित्थे कित्थे कथा करके आए हैं। ये कोई तैयारियां की कथा सी 2 जगह कल। फिर कोई ग्रंथ नहीं कोई कुछ नहीं देखा करिया पढ़िया विचारिया भी की बोलने की नहीं। बिल्कुल उमें जिमें तुरे आए आनंदमई। आ कौन बुलाउंदा है? वो मालिक बुला रहा है जिहदे तोरे होए ज्यों तू बुलावे तिवें बोलदा। जिमें तू बुलावे तिवें बोलदा। जिथे भेजे जावा मालका। जिमें तू बुलावे तिवें बोलदा। जिथे भेजे जावा मालका। बुलावे तिवें बोलदा। बुलावे तिवें बोलदा। जिथे भेजे जावा मालका। जिमें तू बुलावे तिवें बोलदा। जिथे भेजे जावा मालका।
जिथे भेजेगी जाना मार्गा, जिथे भेजेगी उथे जाना मार्गा। जिथे भेजेगी उथे जाना मार्गा, जिथे भेजेगी उथे जाना मार्गा। बुलावे तिमें बोलदा बोलदा तिमें बोलदा तिमें बोलदा, जिथे भेजे जाना मालका, जिमें तुम बुलावे तिमें बोलदा, जिथे भेजे जाना मालका। ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी, दो प्रमाण इसते आउंदे हन। कुदरत कवण हमारी, साध संगत कै अंचल लावो, जो प्रभ की अत प्यारी। दूसरा, ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी, जह भेजे तह जामा, सब नगरी में एको राजा परमेश्वरी, सभी पवित्र हैं थाम। जिथे बैठ जाइए पवित्र पवित्र। भगत कबीर जी का पिछले दीवाना च प्रमाण सुनिया कि एक मगहर की धरती नूं भी मैं कांशी दे बराबर, जैसा मगहर तैसे कांशी, हम एक कर जाने। जिथे भजन करन वाले, नाम सिमरन वाले, जिस नाम विच इन्नी शक्ति है, नाम ही पवित्र करता है, पवित्र ही पवित्र है। जिथे भी भेज दे में ये तेरी अपनी रजा है, कुदरत है, कुदरत करके बसिया सोए। कादर सृष्टि का मालक है, जो करन कराउण वाला करता करीम है, जिसके राज करीम भी उन्होंने के हैं। और हे मालिक, मैं तेरा भेजा होया ही आया है, जिमें बुलावे उमें मैं बोलना। क्यों गुरु साहब जी ने, मैं पहले ही कुदरती है जो मंगल विच भी शब्द हजारियां दी टूक पहला बोलिया, तू सुल्तान कहा हो मियाँ, तेरी कबल वडाई। गुरु नानक साहब महातलोक विच भेजे हुए आ गए और समाधि ला के बैठे रहना। बांदे पास भी भेजा, मौलवी पास भी भेजे, उत्थे भी जाके ठीक है कि वह अजे कहता ही है कि कह अल्फ, गुरु नानक साहब उस तो पहले ही बोल देंगे हैं। अल्फ वेक है, पेक है, तेक है, टेक है, शेक है। कहते तो मेरे तो समझ नहीं आती, इतों बड़े बड़े भी आ मेरे आ जितने विद्यार्थी ने मैं जिन्होंने पढ़ाना, इन्हों दे भी ये तो हिफ्ज नहीं, कंठ नहीं, याद नहीं, बोलना भी इन्हों का उन्ना शुद्ध नहीं। ऐ नानक तू कोई दुनिया विच बच्चा नहीं, कोई बंदा नहीं। मौलाने ने, मौलवी ने यह निश्चा किया
तो कोई औली है जिहड़ा इन्ना शुद्ध बोलना है। और मैं तो पहला जिमें मैं पहला बोलना वो अक्षर नूं तू पहला ही बोल देना, बोलना भी शुद्ध है, मेरे कहण दी देर है, जे मेरे मुख विच है तो अग्गों ही बोल दिंदा है। फिर इत्थे ही नहीं मैं शब्द हजारां दी टूक मातर तो ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी, इत्थे दी अवस्था दे नाल अगे चल रहे हैं। सुनना मनना कमाई करना ते उसे स्वरूप दा किसे है राम मेरी मुझको नमस्कार। तीसरा आदेश कि सुनो, आदेश नमस्कार की सुनो है। 4 दफा 4 पौड़ियां में चारे दफा सुनिया दुख पाप का नाश। जब जी से फिर मनण वालियां वास्ते मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछे पछताए। बाहरिया ना जावा एक बार जो तुद भावे साई फली कर। फिर इत्थे आखे तू सदा सलामत निरंकार। ओ भी जे ओ कायम है तो तू भी वही आत्मा है, तू भी कायम है। ये वेदांत अंग भी सिद्धांत गुरमत दा शुद्ध स्वरूप शुद्ध जिस दे विच अटल सच्चाई गुरमत दी सिੱਖਿਆ है। सिद्धांत जिसनों कहा गुरमत का निर्णय कर देना। वेदांत वेदां तो मुराद है वेदांत के नाल उन्हां दा निर्णय कर देना, नाल अर्थबोध विचार कर देना। जे ओ ब्रह्म सच है सिक्खा, गुरु भी सच है सतगुर है, ताकि सिख नहीं सचे सन। सचियार सिख वैसे सतगुर पास घालन, उथे कूड़े ना टिकन। सिख भी सच्चा है जिने वो शब्द स्वरूप नूं ब्रह्म नूं सतपुरख जिन जानिया, शब्द स्वरूप जानिया। गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे जिन जिन दर्शन पाया। इथों के कितना आनंद बन मिले है। जिन्हों ने गोष्ठ भी सुन ली, ज्ञान विचार इको ही स्टेज है, अर्थबोध का निर्णय हो गया। बहुत सौखे विचार अपने श्रवण किए। सुनना मनना कमाई करके चौथे तिसरे आदेश। इस आनंद विच जे एक सिख है, सिख तो गुरु बने लेना सी, अंग परस के अंगद बने। दूजा नानक बन गए। अमरू निथावा कहते होण कुड़म होवे, बाबा अमरू कहते हैं, पर यह नहीं पता उन्हां दे विच दो नानक स्वरूप एक होया दा नानक स्वरूप ही होना बन गया। तीजा नानक बन गया। ये जीवात्मा रह रहा, ये गुरु ते परमेश्वर एक स्वरूप हो गए। गुर परमेश्वर एको जान, हर जन हर दोए एक है। बेब विचार विवेक। कल एक जगह ते विवेक दे अर्थ करदिया 35 मिनट लंघ गए। जिहड़ा बोलना सी वो 5-10 मिनट च बोलेंगे। विवेक की करो विवेक संत जन पाई, पुछो विवेकियां जाए। विवेक जिन्हां दी ब्रह्म नाल वाहिगुरु परमेश्वर नाल एकता हो चुकी है, उन्हां नूं जाके पुछो। जाए पुछो सुहागणी तुसी राविया किनी गुणी। जिन्हां सुहागणा नूं पति परमेश्वर मिले है, उन्हां नूं सुहागण दे लक्षण पुछो, जीवन पुछो, की उन्हां दा नित कर्म है। फाइस प्यार विच गुरु साहिब जी की उपमा और कितना ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी। जय भेजे तय जावा, सब नगरी में एको राजा, सभी पवित्र है थामा। सारिया जगह जिथे जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सोई थान सुहावा राम राजे। गुर सिक्खी सो थान भालिया, लै धूर मुख लावा। गुर सिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम ध्यावा। ध्यावा ते ध्यावा। जन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करावा।
बिंदी ला के, बिंदी इधर नहीं है जी, हुक्म है भाई साहब भाई मनी सिंह नूं दो टकसालां च दशमेश दियां च पंचम पातशाह वेले दी भी टकसाल है गुरबाणी दी। भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी, भाई बन्नो जी, भाई पैड़ा मुख है जी, ये उस वेले दे भाई बिरी चंद आदि गुरसिख, भाई लंगा प्राणा आदि के उस वेले दे शुभ नाम अमृत नाम रूप पार प्राचीन संत माधो दास जी की कथा सुनिए। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरे, ये पंचम पातशाह वेले दी टकसाल है संप्रदाय। दो चलियां उस वेले दो पोथियां इकट्ठियां करनियां, उस तो बाद भगतां दी बाणी पाई गई। गुरु अर्जन देव जी ने बीड़ बन्नी, दो सैंचियां दोए पोथियां इकट्ठियां कीतियां जो बाबा मोहन जी तो लेके आए आप। उन्हां दे विच भट्टां दे सवैये भरे, अजे नौवें पातशाह दी बाणी नहीं सी रची, नहीं लिखी गई। राग माला तक शब्द आए। नौवें पातशाह दे सलोक गुरु गोबिंद सिंह जी ने ते नौवें पातशाह दी बाणी दशमेश पिता ने जो नौवें पातशाह दी बैराग मई है, ये गुरु काशी दमदमा साहब जा करके फिर तीसरी दफा ये बीड़ बन्नण दा सैंचियां तो बाद पंचम पातशाह दे बीड़ बन्नण तो बाद अनभवी प्रकाश गुरु कांशी दमदमा साहब ये बाणी संग्रह की गई। तो बड़ियां खोजां दी लोड़ है, बड़े प्यार दी लोड़ है। इत्थे तां अपना आप ही गुम हो जाता है, रुल जाता है। कोई इस समुंदर का अंत नहीं पा सकता, जिहड़ा अंत पाउण जाता है वो आप दा ही अंत कराया आउंदा है। जितने भी अज तक बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी पुरुषों दियां कथावां सुनिया, आखिर उन्होंने हथ बन के कहना संगते ये गुरु ग्रंथ साहब समुंदर है। मैं जिन्ना महाराज ने बुलाया बोलता या ज्ञानी सतपुरुषों तो कथा सुनी तुहानू सुना दी, पर यह समुंदर है, इत्थे किसी दे पैर नहीं लगते। कोई कह दे भी मैं ही शुद्ध कीते, हुजूर ने शुद्ध कीते, उन्होंने होर कौन है बंदा जिहड़ा शुद्ध कर देगा। कि बाणी अशुद्ध है, बाणी तीन काल सच है। आओ इस प्यार विच कोई समा सुनना मनना कमाई करना। ते मैं एक प्रमाण सिर्फ हुण सिद्धा पुरखां दा चलदा सी, ये 5 दिन दे समय विच यही विचार चलू। सिद्ध गोष्ठ हो रही है, गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे। हुण इत्थे मैं एक साखी, क्योंकि समय नाल हजूर कहन लगे चलो सिद्धो तुहाडे नाल बहुत आनंद वरते हैं। मैं 4 थां दियां गोष्ठां 4 स्थानां ते गुरु नानक साहब जी ने जिथे जिथे कीतियां आप नूं बिनय कीती है, सुना चुके हैं। और अनंत बेअंत कह नहीं मैं सकदा। आपो अपनियां खोजां ने विचारां ने। सिद्धसर दी धरती या सुलखण नाथ दी या गूगा चौहान दी इन्हां विचारां ते सी कि सिद्ध पुरुषां तो की मिलदा है। मेरी पीरी दे मालक दे नाल साडा जिहड़ा गुर इतिहास नाल संबंध होया है, बाबा जी सिद्ध पुरुष बाबा शिहा सिद्ध पुरुष दा 9 नाथ, वो नाथां विचों सिद्धां विचों 84 सिद्धां विचों, और चौधरी बुजुर्ग मुढ़ जिन्हां ने मोड़ी गड्डी, ये वो इतिहास है। चौधरी राय मुख चौमुखाबाद अपने इलाके दे ज्ञानी राम सिंह जी महान बुजुर्ग, उन्हां तो भी मैं इत्थे तमोट के सिद्ध सारे इकट्ठे होना। मैं कहा जी भी तुसीं इहदे अर्थ तां करो। कहंदे ब्रह्मा तो ही मुराद है। ब्रह्मा पहला इंसान बंदा दुनिया विच देव रूप आया। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जपजी साहब भी ब्रह्मा दे 4 मुख, मगर 5वां भी होया वो कटिया गया। ब्रह्म हत्या लगी जिहड़ी शिव जी नूं। चौमुखाबाद कहण लगे 4 मुखां तो मुराद है जिहड़ा ये धरती दा ज्ञानी राम सिंह जी ने इसके अर्थ तमोट वाले बुजुर्गों ने कीते।
ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਲਾਸੀ ਜਮਾਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਸੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਦੀ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਣਾ ਭਰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਆਪ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਭਰਤਰੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਓ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਮੇਰੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਭਾਵ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੈਠੋ, ਆਸਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕਹੀਏ, ਮਿਰਗ ਦੇ ਖਲੜੀ, ਸਾਡੀ ਖਲੜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮਿਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਗੁਣ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਰਗ ਕੋਈ ਮਾਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਵੀ ਤਾਂ ਮਿਰਗ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਤੇ ਜੇ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਮਿਰਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਤ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਖਲੜੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਿਰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾ ਚਮੜੀ ਤੋਂ, ਉਤਲੀ ਖਲੜੀ ਤੋਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਜ ਸੁਵਾਰੈ। ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਆਸਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਚੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਣ ਲਾ ਲਊਗਾ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਨਾਨਕ ਮਿਆ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ, ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨਾਨਕ ਮਿਆ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨਾਨਕ ਮਿਆ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ, ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨਾਨਕ ਮਿਆ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਆਸਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਧੂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
एक एक उपमा जस करना आसन दई, तेरी उस्तत कर कर जीमा। सिद्धपुर दशमेश जियां दी उपमा, कोई कलगी दी उपमा करी जाता है, कोई नीले दी करी जाता है, कोई एक एक रोम दी करता है। गोया नंद लाल जी ने किया, तेरे सच्चे पातशाह एक रोम दी उपमा। कोई कह दे हिंदुस्तान एक पासे पिया, 9 खंड पृथ्वी पाताल आकाश एक पालने विच पए होण। हे दशमेश जी, तेरे रोम दाड़े साहब दा एक रोम एक पासे होवे तां भी कोई कीमत नहीं पा सकदा। ये उस्तत है। उस्तत कर कर जीवा आप जी दी उच्ची ते सुची कलगी। कलगियां बड़े राजे महाराजियां दे लगियां ने, तो सिफतां करनियां, उपमा करनी, वडियाइयां करनियां, कीरत करना, महिमा कीरत जस करना, इक्को ही शब्द नूं बार बार दोहरा दोहरा के। कीरत नाम की है? उपमा करनी, जस करना, वडियाइयां। जे गुण हन तां वडियाइयां ने, वडियाइयां करके ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, कुछ कहना कहन न जाए तां उपमा कीती जाती है। तो एक आसन दी उपमा। आओ महाराज बैठ गए। असी की आ देखो, अज ही पहला दिन है, धरती उही है। हुण कै साल हो गए सी आसन संगत नूं, गुरु साहब नूं उत्ते चंदोए आसन लगे हुए ने। अज शोभनीक ने, अज धरती भी धन धन कर रही है। नहीं बिरश भी रोंदे सी, एक दो दफा चोरी भी मैं आया, इकला आया, आ बिरश भी रोंदे सी, रोंदे देखे ने। धरती भी रोवे। वही आनंदपुरी सी जदों दशमेश जी वसदे सी, तां की आनंद सी। जदों दशमेश जी छड्ड के चले आनंदपुरीए, तेरे मिलने दी आस बिसारी, उदों इत्थे तक कह के लड़की का रूप धारण करके आनंदपुर की धरती ने दशमेश पिता दे नीले दियां बागां पकड़ लईयां और ताहां मारदी सी, भुब्बा मारदी सी धरती भी। मैनू हुण विछोड़ के चले हो, इत्थे इन्हां खालसे दियां रचना रचा के, इन्नियां खेडां, इन्ने युद्ध जंग मचा के, 8 किले बना के, आनंद गढ़ियां रचा के, अज मैनू सुन सराम करके छड्ड के चले हो। उस्तत उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारा वार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। उस्तत दा ही आनंद है, कोई हिसाब ही नहीं। इत्थे आसन दिता, उदों जल पानी भोजन लियाने। आओ महाराज। अर्थरी ने गुफा विचों जाके कंदर चों, मैं एक साखी सौखे प्यार नाल, समा नेड़े जांदा है, एक प्याला लियांदा, एक बर्तन चों जल दा रूप है। ये की सी? ये मद सी। है नानक तपा प्याला प्रेम दा पीवो। भरथरी ये की वस्तु? शुभ काज के काज विचार भले, सो पुरुष के लक्षण हैं यही। कोई कम करना है, कोई विचार है, कोई वचन बोलना है, तोलो फिर बोलो, पहले विचारो ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਊਗਾ। बोलन तो भी पहला नियमावली होंदी है। कोई स्टेज ते जाना तो असूल तो खिलाफ नहीं, असूल के अनुसार बोलना, अपने धर्म शास्त्रां के अनुसार रहना, इतिहास के अनुसार किसका विखेप पाया गलत ना बोलो, किसी की निंदिया ना करो, किसी धर्म की खिलाफताई विच मत बोलो। असूल दे जो 3 शब्द विद्वाना वास्ते, बुलारियां वास्ते, किस की निंदिया जी करन लग गए तो उसकी निंदिया नहीं, उसका उस्तत, ये तो उस्तत का जस कीर्तन का स्थान सी, उसकी निंदिया नहीं करते, सगों उसदे गुण गाउण लग गए हो तुसीं। कल आ लिया की है प्याला, शुभ काज आदि विचार भली, शुभ पुरुष के लक्षण हैं यही। ये राजनीति की है, इस विच सोचो, तोलो, बोलो। कहने लगे महाराज ये प्रेम का प्याला है, फिर की इसनों पी के की हो?
अंतरजामी पुरख स्वामी गुरु नानक जगत गुरु नानक। ये की है परसरी? कहते महाराज प्रेम का प्याला है, ये पी लो, मस्ती चढ़ू, खुमारी चढ़ूगी। जिहड़ा तुसी नाम जपदे हो उहदे विच दुगना तिगना होर मन लगूगा। पहर 2 3 पहर इतनी समाधि लगू, खुमारी मस्ती चढ़ जाऊगी। फिर भरतरी की होऊगा? फिर भी लोड़ पैंदी है। हाँ, फिर मैं होर प्याला एवें जिमें भर के फिर पी लैंदा। जे नशा उतर जांदा फिर पी, तां शराबियां दी गल हो गई। ऐ भरतरी साडा जिहड़ा प्रेम दा प्याला पीता होया है, पहले ही पी चुकिया सी। तेरे पिलाउण तो पहला साडे निरंकार गुरुदेव ने, पार ब्रह्म परमेश्वर ने सानू एक ओंकार सतनाम करता पुरख दा जिहड़ा प्याला प्रेम दा पिलाया है, छकाया होया है, ओदा नशा कदे उतरदा ही नहीं। पोस्त भंग अफीम मद उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आ साडा प्याला पीता है, चढ़ी रहे दिन रात तेरे नाम दी खुमारी। चढ़ी रहे दिन रात तेरे नाम दी खुमारी। दिन रात तेरे नाम दी खुमारी। चढ़ी रहे दिन रात तेरे नाम दी खुमारी। नाम दी खुमारी, नाम दी खुमारी। चढ़ी रहे दिन रात तेरे नाम दी खुमारी। नाम खुमारी। हजूर ने प्यार नाले दा अर्थ बोध विचार भरतरी ने सुना के फिर कहने भरतरी ये प्यालियां दे नाल और पिछले जीवन की थोड़ी जी झलक भी जगत गुरु नानक साहब भरतरी नूं श्रवण मुड़ के कराउंदे ने, याद कराउंदे ने, जिन्हें रिवीजन कहने कहने याद कर जड़ा पहली पढ़ाई तैनूं चोट लगी, अंबरफल तो चोट लगी, चलो घर बार छड्डिया, राज पाग हुकूमत छड्डिया, 360 राणी बिरलाप करदी नूं छड्डिया तू, फिर जोगी बन गया, कन फड़वाए नहीं। इत्थे हुण कहने मैं कहते हाँ सीधियां शक्तियां मिल गई कुछ, पर एक गल दस तैनूं शांति भी आई है? कहते नहीं। मैं हाँ जिमें अचल बटाले जाते सी सिद्ध लोग, मैं देह पलटा के आकाश में उड़ भी सकता हाँ, रिधियां सिद्धियां भी हैं, शक्तियां दिखा सकदा, ओले हो सकदा, छोटा बड़ा शरीर कर सकदा, देही पलट सकदा हाँ, आकाशां च उड़ना मतलब कुछ दे कुछ बन जाना। रिधियां सिद्धियां तो मिल गईयां पर अजे आत्मा नूं शांति नहीं आई। बहुत क्यों जब तब किए बहुत मैं भाई तो मेरे उर शांत न आई। बहुत कुछ कर लिया
और हिरदे नूं अजे शांति नहीं। जो अजल कल की सब बाहर भी मशहूर है, पीस ऑफ माइंड, जी आत्मा नूं शांति है, पीस ऑफ माइंड कहते हैं। तैनूं पता भी क्यों नहीं? मेरा वैद गुरु गोबिंद, गुरु नानक साहब हुण ਉਹ एक गणत विद्या वाली ते वैदां वाली कुड़ी 10 भी पाउंदे ने परचरी। तैनूं एक गल दसदे आ, याद रखी, इस तो बाद नहीं तड़फदा जलदा बलदा हो रहेगा। अज 3 दिन रहिंदे ने, 3 दिन की दे दूनागढ़ विच एक महाराजे दी राजकुमारी है, शहजादी है। उन्हें तैनूं किसे समय किसे राज मंडल विच स्वयंवर रचिया होया सी, राजे होर भी बहुत इकट्ठे हुए सी, और उस राज विच जिमें दशमेश जी ने कानफरंस चंबे वाले राजे दे रखी सी, 22 तार पहाड़िए इकट्ठे कीते सी। उस वेले चंबे रियास दी लड़की महाराजे दी सपुत्री ने दशमेश जियां दे दर्शन कीते। कहंदी या तो मैं शादी ये राम जी वागू भगवान श्याम जी वागू नजर आउंदे ने, या तो ये नाल शादी कराऊं, नहीं मैं शादी नहीं कराउणी, मर जाना मंजूर है। ये चंबे वाले राजे की हकीकत ते कानफरंस दशमेश जिया ने औरंगजेब के खिलाफ इन्हां दे हिंदू धर्म नूं कायम रखण वास्ते 22 तार पहाड़िए राजे इकट्ठे करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक कानफरंस रची सी। उत्ते चढ़दी जुबा अवस्था विच ऐसे राजे महाराजा नूं उपदेश दिता। बुजुर्ग सियाणे सियाणे राजे दशमेश जियां दी झलक चल नहीं सी सके। मैं स्वयंवर दी गल जिवें कानफरंस विच एक सुंदर स्वरूप तेरा तक के वो राजकुमारी ने परण कर लिया दूनागढ़ वाली ने, भी मैं अगर शादी करावां तो भरथरी महाराजे नाल करावां। हुण तूं तां जोगी बन गया, फकीर बन गया, सिद्धां विच आ गए, सिद्धियां शक्तियां भी तैनूं मिल गईयां। ओहदी जिंदगी दे सिर्फ 3 दिन बाकी रहिंदे ने। 3 दिन विच अगर तू ना मिलिया, उन्हें प्राण त्याग देने ने। तू जेड़ी कहने शांति, जेड़ी मोक्ष, जेड़ी मुक्त मार्ग ते तू चले, रिद्ध सिद्ध अवरा साध भाव आत्म पद है, जो आत्मक दर्शी होने वो उच्चा दर्ज है। यही संदेश संत आतर सिंह जी महाराज, संत तेजा सिंह डबल है मैनू उपदेश दे के कहते हैं, असी विदेशों विच तां नहीं जाना। संत तेजा सिंह जाना तो तैने ही है, तू ही उपदेश प्रचार करया सिੱਖੀ दा। पर एक साडा याद रखी स्नेहा कि उन्हां लोगां नूं ये कह दो भी मत हो रिद्धियां सिद्धियां विच, अवरा सादां स्वादां विच मत पै जाण, मानता विच भुलेखे ये तोड़िया भी उन्हां दे पूजा दे। पर एक गल आत्म पद, आत्म का मंडल जो है, आत्मक मंडल आप दे स्वै स्वरूप दे दर्शन करने। दारा शिको बीमार होने तो राजी होने तो बाद फिर आया सी श्री हर राय साहब जी पास। पहले भी उन्हें दर्शन किए कीरतपुर साहब, यही सवाल किया सी और बड़ा कुछ दर्शन मेला थोड़ा ठाठ वाग तक के शांति आई। पर एक गल है, मैनू इउं दस दो, भावें मैं इस्लाम मत विच हाँ, मैं एक फकीरां दी महफिल विच जाना, संगत करदा साधुआं दी, मेरा स्वरूप की है? मेरा स्वरूप आत्मा पर आत्मा एको करे, अंतर की दोदा अंतर मेरे। हजूर ने बाब श्री हर राय साहब जी ने 7वें पातशाह बाबा गुरदित्ता जी के सुपुत्र हरगोबिंद साहब महाराज जी के पोतरे 7वें पातशाह ने
यही उत्तर दिता, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। क्या नाम ज्योत स्वरूप की दे जात में ज्योति दा ज्योति जात जान लिया, सर्वमयी ओ ब्रह्म दा परमेश्वर दा तो स्वरूप है। उत्ते मन बुद्ध चित अहंकार कारण श्री तिन ते पिछे भी बोल के आए हैं, कोई दूर तो नहीं, कुली कला देर भी नहीं होगी। तेरा स्वरूप की सच दा स्वरूप है तेरा, पर तू भुलन कर, तू ब्रह्म दा स्वरूप है। क्यों ही कह दे गुरसिख का तू गुरु दा स्वरूप है। गुरु परमेश्वर दा स्वरूप है, सचखंड बसै निरंकार, कर कर वेखै नदर में। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। तेरा स्वरूप जोत स्वरूप ब्रह्म दा स्वरूप है। परमेश्वर जी दी सारी जोत जग रही है। घट घट में गरजू बसै, संतन कहो पुकार। ये स्वरूप तेरा है, शांति स्वरूप। आओ ऐ परथरी, तैनू ओ अजे मंजिल नहीं मिलनी, ना तैनू शांति आवे, ना टका चैन आवे। ये रिद्धियां सिद्धियां यही संत तेजा सिंह डावले मैनू कि आत्मक आनंद विच आत्म पद उच्ची अवस्था है, ਉਹਦੇ दर्शन कर लो, यही सब तो उच्चा सुचा दर्जा है। संत तेजा सिंह साडा सुनेहा विदेशों विच यही दे के आ। यही जगत गुरु बाबा जी परथरी नूं कहंदे हन कि परथरी आत्मिक शांति तो मिलेगी, हुण तू एक दफा तैनू उस राजकुमारी दा पति बनना पवेगा। फिर बेशक तू एक रात कटिया उत्थे, एक दिन मिलिया, उदों बाद फिर आ जा भी सिद्धां दे विच जा, तैनू बख्शदे आ। पर तैनू एक दफा उस राजकुमारी नाल तेरा संजोग है, ऐ परण है। तैनू उस स्वयंवर विच तकिया सी। शुभ विवाह 8 प्रकार दा मनु जी ने मनु सिमरती विच वर्णन कीता है। शुभ विवाह की गल ते जिहड़ा गुरु दे वचन विच है, देव विवाह शुभ विवाह, गुरु की हजूरी गुरु का हुक्म मन के 8 विवाहां विचों पहले हुण तां समय ही नहीं बोलण दा हुंदा आनंद कारजां ते, मेरा तां उही छड्डिया। हुण तां 8 प्रकार दे विवाह कदे सुने ने, जे सुने ने तां कोई सामने लियावे भाई। मनु जी तो ऐ कहणगे तां हिंदू सी जी, हिंदू। असीं इन्नी गल समझनी कुछ नहीं। मनु कौन सी? मन है। मन हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि जैनी है कि बोधी? मन का स्वरूप की? मनु और धर्मराज, धर्मराज दे कीने नहीं पेश होना। हर एक धर्म पुकारा करदा शुभ कर्म करो, नहीं वो धर्मराजे की सभा विच पेशी होवेगी। ये दोवें सूर्य नारायण दे पुत्र विश्वकर्मा जी दे दोतरे जमुना दे पुत्र दोवें हुए हन। अश्विनी ते कुमार भी हुए हन। दारा और दलीप केते अश्विनी कुमार केते 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 हुए अंत भूम में मिलत। मनु ते धर्मराज ये छाया दे पुत्र हुए। छाया तो ही रच ले, जिमें सीता ने रचे, तैसे जमुना ने सूर्य नारायण का तेज प्रताप न चलती हुई दोवें पुत्रां नूं जन्म दे। आप छाया का रूप धारण करके पिता दे घर चली गई। मनु मन की है? अर्जन ने पूछे भगवान नूं गीता विच। भगवान ने कहा मन, हजूर ने कहा मन तो जोत स्वरूप है। कमाल दी गल है। आत्मकदर्शी मन नूं समझाउंदा। मैं ये भी बोलिया
ਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾਨਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਟੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦਾਨਾ ਮਤ ਬੁੱਧ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਦਾਨਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨ। ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨ। ਸੁਣ ਲੈ ਮਨ ਵੀ ਲੈ ਮਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮਰ ਗਿਓ, ਮਨ ਤੋਂ ਮਰਿਓ ਨਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂ ਬਰਸਤ ਹੈ, ਦਾਦਰ ਨਿਆਈ, ਡੱਡੂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਡੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਰੂਪ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਵਨ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਪਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਿਆਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਫੇਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਈ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਡੱਡੂ ਡੱਡੀਆਂ। ਬਰਸਾਤ ਪਈ, ਫੇਰ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਫੇਰ ਬਸ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਤਰੇ ਆਹ ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਰਨ। ਉਹੀ ਹਾਕਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟਿਆਂ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਗੱਲ ਸੁਨ ਰਹੇ ਮਨ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਜੇ ਮਨ ਦਾਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਜਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਖ ਨੂੰ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਹ ਚ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਹੋਰੇ ਰਸਾਂ ਚ ਪੈ ਗਈ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ, ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਢੀ। ਮਨ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ੀ ਹਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏ ਮਨ ਦਾਨੇ, ਮਨ ਮੋੜ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੰਮ। ਆਓ ਪਰਥਰੀ 3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੇਰੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਅਜੋਂ ਕੁਛ ਵਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ। ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਜੇ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਨ। ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਥ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਲੈ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਵੇਂ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਪਹੁੰਚ ਜਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਗੋਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਸੁਣ ਉਦਰੇ, ਗੋਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਸੁਣ ਉਦਰੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਗੋਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਸੁਣ ਉਦਰੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ, ਗੋਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਸੁਣ ਉਦਰੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਗੋਸ਼ਟ ਗਿਆਨ
ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਸੁਣ ਉਧਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਤਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਕੋਲ ਜਾਓ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਪਾਸ ਭਰਤਰੀ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੋਕਸ਼। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਨਾਗੜ੍ਹ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਨਾਗੜ੍ਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗੁਫਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, 360 ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਲਦੀਆਂ ਜਲਣ, ਮਰਦੀਆਂ ਮਰਨ, ਲੜਦੀਆਂ ਲੜਨ, ਖੜਦੀਆਂ ਖੜਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕੋ ਬਚਾਓ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦੀਆਂ ਮਰਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਕਰੀ ਜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 6। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹਰ ਨਾ ਧਰਨਾ, ਸੋ ਪਦ ਰਵੋ ਜੇ ਬਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਐਸੇ ਮਰੋ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਰਤਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਜੇ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਥਾਂ ਪਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕੀ ਆਨੰਦ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਉਂ ਕਰ ਹੁਣ ਭਰਤਰੀ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਲਿਆ ਰਬਾਬ ਕੀਤੀ ਕੇ, ਰਬਾਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਰ ਕਰ ਲੈ, ਸੁਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਮੇਲ,
ਸੁਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਲ ਵੀ। ਇਹ ਸੁਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲ ਹੈ। ਧਾਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਲ ਆਕਾਸ਼। ਜੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਸੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਰ ਵਿਹੀਨ ਬਿਖ ਗਾਏ, ਸੁਰ ਦੇਵ ਲੋਕ। ਸੁਰ ਇੱਕ ਰਸ। ਜੇ ਬਿਸੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਉ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਬਿਖ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ ਭੋਜਨ ਗਰਲ ਅਗਾਏ। शुभ को संग दरिद्र विख सुर बेहीन बिख गाए। तो सुर कर। सुर परसों भी सुनिया सी कि सत्ता बलवंडा जवाब दे गए, कौड़ी हो गए। ऐ सरंदियां नूं, ऐ रबाबां नूं, ऐ जोड़ियां नूं गुरु अर्जन देव महाराज कहा, बजाओ बाबा बूढ़ा जी। गुरसिख भोले भाले कहते महाराज अज तक असीं तां सुरे नहीं कीते। कहते गुरु साहब कहते बस तुसीं हथ धर दिओ, आपे ही सुर होए पे ने। इन्नी बख्शिश कीती गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। सुर तार मेल है जदों मिलाउने आ ना, उदों सुरां खिचदे आ। जदों राग दी वस्तु हुंदी है भी अजे होर खिच ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਟਿਕਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੁਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਮਿਲਾਉਣੀ। ਜੋੜੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਠੱਕ ਠੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਧਰ ਸੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਸੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਪਕੜ ਲੈ ਰਬਾਬ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ भी हुक्म दिता, भाई वाला नेत्र बंद कर लो। इधर भरथरी भी, भरथरी जोगी है पर तू चरनी पै गया। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी संदा। हथ ला लै रबाब नूं। किथे जा पहुंचे? दूनागढ़। ऐ पता लगे एक बाग विच जाके गुरु नानक साहब ने डेरा ला लिया। आओ इत्थे ही टाइम तो उत्तों ਦੀ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਸੁਣ ਉਧਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। तेरा जिन जिन दर्शन पाया, सतगुर जिन जिन दर्शन पाया। दर्शन पाया, जिन जिन दर्शन पाया, जिन जिन दर्शन गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे, गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे। गोष्ठ ज्ञान धन है, धन है गुरु नानक साहेब धन है। धन है